मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने बात की थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी पार्ट 3 में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था कि राइट द डिफरेंट वेज बाय विच इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड। वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the rate of change of magnetic flux linked with any coil, and we know that magnetic flux is equal to B dot A, or we can write B dot ds. Okay, in expanded form it can be expressed as BA cos of theta, or it can be expressed as B ds cos of theta. This relation clearly indicates that the induced EMF, it depends upon the rate of change of magnetic flux, and magnetic flux, it depends upon the strength of the magnetic field in the coil and orientation of the coil. Means we can produce induced EMF by changing magnetic field, or by changing area of the coil, or by changing orientation of the coil by rotating any coil in uniform magnetic field. ये तीन अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन हाउ वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल. उसमें भी दो अलग अलग केसेस है, दोनों केसेस को हम डिस्कस. टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रेक्टेंगुलर लूप. दिस PQRS is a rectangular loop with its PQ arm is free to slide over the remaining adjacent two sides of the rectangular loop, and this cross sign represent inward magnetic field. ये cross sign inward magnetic field को represent कर रहा है. Okay, and now if we slide the slider with v velocity in outward direction, in such case as we slide it on the arms of the rectangle, area enclosed by the loop changes. Initially this area is enclosed by the rectangular loop. As we move the slider in outward direction, area enclosed by the loop changes. अगर हम यहां पर change in area की बात करें तो change in area is equal to, अब यहां पर आप चेक करें कि length of the slider, जो length of slider है वो कितना है, L है, and if it is moving with v velocity and it reaches to the new position in delta t time, then the distance covered is equal to v delta t, and this area is equal to the change in area of the rectangular loop. So change in area of the loop is equal to length of this PQ arm multiplied by shift in the PQ arm, which is equal to V delta T. Okay, तो इस तरह से हम change in area को find out कर सकते हैं, and we know that flux is equal to B A cos of theta. अब यहां पर theta is the angle between magnetic field and area vector, and here in this case area vector का डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ड है. अगर जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, तो जो कि हम इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं. एंड अगर हम इनवर्ड कंसीडर करते हैं तो एंगल जीरो हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ड है. एंड इन केस व्हेन एंगल इज जीरो, cos ऑफ जीरो इज 1. एज पर आवर फिगर फ्लक्स इज इक्वल टू BA. अब यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ द कॉइल, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू B into delta A. तो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज B and change in area is equal to L V delta T. Okay, now according to Faraday law of electromagnetic induction, we know that induced EMF, it is equal to rate of change of magnetic flux, and it can also be expressed as delta phi by delta t. अगर ये वैल्यूज हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो we can write it as minus of delta phi, which is equal to BLV delta t. Okay, and time for this change in magnetic flux or change in area is delta t. Delta t से delta t cancel. It means induced EMF is equal to minus of BLV. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंजेस, और हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं. सिंपली वी कैन राइट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV. ये एक्सप्रेशन हमने रेक्टेंगुलर लूप के लिए ऑब्टेन किया है. इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने
एक लीनियर कंडक्टर को अगर हम शिफ्ट करते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में भी उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था, BLV। ओके, कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दैट आर्म? उस PQ आर्म में हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कौन सा रूल हम यूज करेंगे? तो रूल जो हम इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ध्यान देना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को, एंड दिस फिंगर indicate the direction of induced current. Okay, here in our figure the direction of magnetic field is inward and motion is outward. ये जो कंडक्टर है PQ ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम Q to P। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम Q to P। हमारे फिगर के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है Q to P। इज इट क्लियर? So by using Fleming right hand rule, we can find the direction of induced current. Now, can you determine or can you tell the polarity of induced EMF across the two ends of the conductor? आप सोचकर देखें कि अगर हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता है तो क्या हम इस दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, क्या उसको हम बता सकते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पोलैरिटी को प्रेडिक्ट करने में, बताने में मिस्टेक करते हैं। हमारा दिमाग क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम Q to P। अब इसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि Q की पोलैरिटी पॉजिटिव है और P की पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव है, जो कि आंसर गलत है। जनरली हमारा दिमाग कहता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एंड एट हायर पोटेंशियल टू एंड एट लोअर पोटेंशियल। ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, हमने इसी तरह से सीखा है। लेकिन आप ध्यान देना कि जब हम किसी कंडक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा and that conductor will behave as a fictitious battery। वो एक fictitious बैटरी, इमेजिनरी बैटरी की तरह वर्क करेगा और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जिसके थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करती है। अब आप ध्यान देना, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है, P से S की तरफ, S से R की तरफ, R से Q की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, अगर हम इस पार्ट को एक बैटरी कंसिडर कर लें, तो अगर इस पार्ट को हम बैटरी कंसिडर करते हैं तो we know that current always flows from positive end of the battery to negative end. It means induced EMF, अगर ये एक fictitious बैटरी है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एंड है it will behave as positive and this end will behave as negative। यानी कि induced EMF की ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। तो करंट के डायरेक्शन को नहीं, करंट का डायरेक्शन अगर हमें चेक भी करना है तो एक्सटर्नल सर्किट के अकॉर्डिंग फिर हम पोलैरिटी को बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या पोलैरिटी होगी। नाउ लेट अस टेक अनदर टॉपिक इन व्हिच we are going to consider that a straight conductor, if we rotate any straight conductor in uniform magnetic field, उस केस में उसके एंड्स के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो। नाउ इन दिस टॉपिक, यहाँ पर आप फिगर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ओके, और यहां पर हमने एक OPA कंडक्टर कंसिडर किया है एंड लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर इज L। Now we are rotating this conductor with omega angular speed। हम इस कंडक्टर को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा एंगुलर स्पीड। अब आप ध्यान देना, आफ्टर डेल्टा टी टाइम दिस विल बी द पोजीशन ऑफ P, और उस पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P डैश। एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम के बाद में ये जो कंडक्टर है वो इस पोजीशन में आ जाता है एंड एंगल स्वेप्ट बाय दैट कंडक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ दैट रोटेटिंग कंडक्टर। अब आप ध्यान देना कि इसके अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, कि इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया स्वीप किया है। एरिया ऑफ दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज पाई L square, which is the total area of the circle, into angle divided by total angle, and total angle is 2 pi। As angle is expressed in radian, तो total angle 360 की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 pi। तो in this way we can find the area swept by the conductor। अगर हमें area swept by the conductor पता है तो हम change in magnetic flux भी कैलकुलेट कर सकते हैं, and change in magnetic flux
इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए। जैसा कि इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं। बी इंटू डेल्टा ए एंड डेल्टा ए इट इज इक्वल टू, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, हाफ ऑफ एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, एंड दिस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर एंड दिस डेल्टा थीटा it can be expressed as omega delta t. This is equal to the change in magnetic flux. Change in magnetic flux का मतलब यहाँ पर flux change नहीं हो रहा है, लेकिन it cuts this amount of magnetic field lines, और इतने magnetic flux को वो cut कर रहा है। And according to Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF is equal to minus of delta phi by delta t. Negative sign को हम ignore कर सकते हैं क्योंकि हमें induced EMF की strength चाहिए। तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पर आप ध्यान देना, बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन calculate the amount of induced EMF which develop across the two ends of the conductor। अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। एक साइकिल रिंग को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड, अब इस साइकिल के रिंग को रोटेट किया जा रहा है विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, मान लेते हैं फिगर में मैंने यहां पर 8 स्पोक्स रिप्रेजेंट किए हैं। तो एज वी नो दैट कि अगर एक कंडक्टर है उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, अगर इन सभी को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें, रिंग के साथ साथ वो सारे स्पोक्स जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहे हैं। नाउ कैन यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एक्सल एंड रिंग ऑफ द साइकिल। मतलब एक्सल और रिंग के अक्रॉस टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्या वो आप बता सकते हैं? ये तो हमें पता है कि जब अब अगर ये सिंगल स्पोक है उस केस में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। लेकिन यहां टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 8। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होता है 8 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, जो कि आंसर गलत है। अब आप ध्यान देना, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, मान लेते हैं E, विच इज इक्वल टू दिस। इस स्पोक के अक्रॉस भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, E, और ये उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी मान लेते हैं, ये उसकी नेगेटिव पोलैरिटी मान लेते हैं। ओके, अब आप ध्यान देना कि ये जो सारे स्पोक्स हैं इन सब के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दे ऑल आर इन पैरेलल। और अगर हम इनको फिक्टिशियस बैटरी कंसीडर कर लें, इफ 8 बैटरीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, 8 बैटरीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E are connected in parallel, the total induced EMF across the combination will remain same, that is equal to E। यानी उस केस में इस एक्सल और इस रिंग के अबाउट जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वल टू E, एंड विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, वेयर L is the length of the spoke or we can say radius of the ring। Okay।